Hello students, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigere, and in my lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we were learning about Chapter 5, Arrest, and today it is our last lecture on Chapter 5 of Arrest. Today we are going to have a topic called right of the accused or the right of the arrested person. So, we are going to start this video lecture. Please remember, do not forget to open your Barrett as we study the Code of Criminal Procedure 1973. Now, let's see what are the rights of the accused or the arrested person. The topic which we are going to discuss today in this is right to know the grounds of arrest according to section 50 subsection 1, information regarding to be released on bail, section 50 subsection 2, obligation of a person making arrest to inform about the arrest etc. to be nominated to the nominated person is section 50A. Next is production before magistrate, section 57, examination of the accused by medical practitioner at the request of police officer, section 53, examination of arrested person by medical officer, section 54, procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant is section 55, health and safety of arrested person, section 55A. This we have already discussed in the video of medical examination, section 55A. And the last point which we are going to discuss is arrest to be made strictly according to the code, that is section 60A. Now we are going to start our first right to know the ground of arrest according to section 50 subsection 1. Actually speaking, the power given to the police to facilitate the making of arrest are not absolute. If you see, CRPC has given a wide scope to the investigating machinery. Two machineries are very important, investigating machinery and judiciary machinery, which are implementing the CRPC. Okay, but the powers given to the police is not absolute. Okay, they are subjected to certain restraint. These restraints are primarily provided for the protection of the interest of the person who has been arrested, and also to the society at large. The imposition of restraint can be considered to an extent as the recognition of the right of the arrested person. So we will look at now section 53, section 50, subsection 1. Right to know the grounds of arrest. According to section 50, subsection 1, every police officer or other person arresting any person, as I told you, police officer can also arrest, any other person can also arrest, even magistrate can pass an order for the arrest, even he can arrest himself or he can direct any other person to arrest. So whoever arrests does the arrest job. Okay, whoever arrests any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. मतलब क्या है, सिंपल है कि जब कोई अरेस्ट होता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर करे या कोई भी दूसरा व्यक्ति करे, ओके, जिसको अरेस्ट किया गया है, अगर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया है तो आपको उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है कौन से पर्टिकुलर ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया गया है. जैसे मैंने आपको पेड़ का बताया था एग्जाम्पल, वो पेड़ काटने वाला बंदा पेड़ काट रहा था, डाली गिर गई, बच्चे को लग गया, बच्चा को अस्पताल में लेके गए, वहाँ पर मेडिको लीगल केस हो गई. मेडिको लीगल केस होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया था, इसलिए विदाउट वारंट पुलिस के पास पावर थी, पुलिस पहुँच गई उसके घर पे. अब उसको पता नहीं कि भाई वो बच्चे को लगा है, इसलिए उसको पुलिस अरेस्ट करने आई. फिर उसको बताना पड़ा कि भाई आपने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है, आपके नाम पर ऐसा ऐसा FIR दर्ज हुआ है और उसको अरेस्ट किया गया. तो पहला राइट क्या है अरेस्टेड पर्सन का, वो ये है कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो बताना बहुत ज़रूरी है अरेस्ट करने के वक्त. ये पहला राइट हो गया. आइए हम दूसरे राइट की ओर देखते हैं. ओके, दूसरा राइट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. अभी देखो मैंने कहा पहले ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है,
बेल कैसे मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन अरेस्टेड पर्सन को देना बहुत ज़रूरी है, ये भी अधिकार है उसका। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, ओके, other than a person accused of non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. जैसे बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, उसको कितने का बेल लगेगा, कितने की श्योरिटी लगेगी, ये सारा पुलिस ने बताना बहुत ज़रूरी है। ये उसका अधिकार है कि उसको बेल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, उसका ऑफेंस कौन सा है। प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 57। किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इज रीजनेबल, and such period shall not, in the absence of the order of magistrate under section 167, exceeds 24 hours, exclusively at the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court. मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि भाई किसी को भी अरेस्ट किया ना 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करो, लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन ऐसा है कि जो जर्नी का टाइम है, ये जर्नी का टाइम एक्सक्लूड किया गया। जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पता चला कि जो एक्यूज्ड है वो तो बिहार में है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बम्बई में है, अभी उसको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे में कैसे उसको प्रोड्यूस करेगी, नहीं कर सकती। तो बिहार में अगर उसने उस एक्यूज को अपने ताबे में ले लिया तो वहाँ से बम्बई आने तक का जो टाइम है, ट्रैवल की जो जर्नी का टाइम है, उसको एक्सक्लूड करके 24 आवर्स है सेक्शन 167 में। सो इट शुड नॉट एक्सीड 24 आवर्स। ये राइट है एक्यूज का कि उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है। देन एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये सेक्शन 53 है, इसको हमने पढ़ा था पहले ही, और इसके विषय में मैंने आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने ये सेक्शन कवर किया है। आपको लगता है तो आप उस पे जाइए और इस सेक्शन के बारे में देख लीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। उसके बाद एक है सेक्शन 54, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ये अलग है और सेक्शन 53 अलग है। सेक्शन 53 में पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया था भाई मेडिकल एग्जामिनेशन करो, यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन मतलब उसको एग्जामिनेशन उसका करना ही है। ये सेक्शन को भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जो वीडियो है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज, उस वीडियो में आपको ये सेक्शन भी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। उसका बाद का जो सेक्शन है वो है प्रोसीजर व्हेन द पुलिस ऑफिसर अलाउज द सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट। अगर कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर का अरेस्ट करता है अंडर सेक्शन 55 तो क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सेक्शन 55 में इट प्रोवाइड्स फॉर द मोड ऑफ अरेस्ट बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकता है अरेस्ट करने के लिए, वो भी विदाउट वारंट। वो सेक्शन 55 क्या कहता है, लेट अस लुक एट सेक्शन 55। व्हेन ए पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, चैप्टर 12 हम पहुंचे नहीं है, चैप्टर 12 बताता है इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस एनी पर्सन who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest in order in writing। मतलब सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देना पड़ेगा राइटिंग में कि जाओ भाई इसको इस फलाने फलाने को जाकर अरेस्ट करो, जब अरेस्ट विदाउट वारंट है। स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, ऑर्डर में किसको अरेस्ट करना है, उसका नाम, उसका पता, सारा डिटेल्स होना चाहिए।
एंड द ऑफेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है, कौन सा ऑफेंस उसने किया है उसका भी डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है अरेस्ट ऑर्डर में, जो पुलिस ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को देगा। और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर। मतलब सबॉर्डिनेट ऑफिसर जब जाएगा उसने उसको वो ऑर्डर की कॉपी दिखानी है, बतानी है। अगर ज़रूरत पड़े उसने पूछा कि भाई हमको ऑर्डर की कॉपी दिखाओ, तो उसको प्रोड्यूस करके दिखाना भी है। नंबर सबसेक्शन 2, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 41। मतलब 41 का जो पावर्स है वो सारे पावर्स लागू हो जाएंगे। अगला सेक्शन है जो राइट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जैसे मैंने कहा ये सेक्शन 55 है, ये ए, इसको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। ये सिंपल सेक्शन है, ये कहता है कि जिसके कस्टडी में एक्यूज्ड है उसकी जिम्मेदारी है एक्यूज की सेफ्टी और उसकी हेल्थ की। मतलब जिसने अरेस्ट किया है उसको ये जवाबदारी है कि भाई जो खाना दिया गया एक्यूज को वो अच्छा है, अच्छे हाइजीन में रखा है, टॉयलेट बाथरूम ठीक है, ये सारी बातें जो है वो जो कस्टडी में लेता है ऑफिसर, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये सेक्शन 55 ए कहता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। ये लास्ट सेक्शन है सेक्शन 60 ए। ये सेक्शन जो आया है वो अमेंडमेंट ऑफ 2008 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सेक्शन बहुत सिंपल है। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी अरेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किया तो वो अरेस्ट के प्रोसीजर, ये पूरा अरेस्ट इस कोड के प्रोविजंस के द्वारा जो लिखा गया है उसी के द्वारा उनको करना पड़ेगा। दैट मीन्स except in accordance with the provisions of this code or any other law for time being in force providing the arrest, you cannot make the arrest। मतलब अरेस्ट जब करते हो तो पूरे प्रोविजंस को फॉलो करो, सारी प्रोविजन जो कोड में दिए गए हैं उसके अनुसार होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने आपको राइट ऑफ एक्यूज जो है उसको उसके बारे में बता दिया है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन ये सीआरपीसी में है। अगर आप किसी के लॉयर बनेंगे तो अगर आपका क्लाइंट अगर पुलिस कस्टडी में है तो प्लीज़ उसको ये ब्रीफ करना हमारा काम है, ताकि अपने एक्यूज को अपने अधिकार का पता चल सके। मुझे लगता है कि मैंने अरेस्ट के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को भी सारे कवर कर दिया है। और अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 की ओर जाएंगे। चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि भाई कोर्ट में किसी को प्रोड्यूस करना। हाँ, कोर्ट किसके लिए रुकेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं मुझे आज टाइम नहीं है, अगले दिन आता हूँ, परसों आता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट का टाइम प्रेशियस है, यू कैनॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट। सो court has been given power under the Code of Criminal Procedure 1973 and the process is given to compel the appearance of a person. Now today we have completed till section 60A. From in the next video lecture we will start from section 61 to section 90. If you have liked the content of this video, please show the like, subscribe the channel and share it with your friends who are doing BLS and LLB, and especially those who are appearing for competitive exam. Thank you.